Suicide by a 25-year-old MBA student has triggered massive protests at Indraprastha University in Dwarka, with students demanding suspension of the warden Rakesh Kumar. Hello and welcome to The Print. I'm Sagrika Kissu, and right now I am at Indraprastha University to talk to students to understand what led to the death of a 25-year-old student, what is the administration saying, and what are the students demanding. The unrest began after Gautam Kumar's death on 15 September. The day before, he had joined a fellow student's birthday celebration when Warden Rakesh Kumar barged into the room. He accused 6 students of drinking alcohol and expelled them. Other hostel residents claim Kumar, who was only there to eat cake, insisted he hadn't consumed alcohol. तो मैम हमारे एक सीनियर है जो सीनियर इन द सेंस हमारे सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है वो उन्होंने 1 महीने पहले हॉस्टल ज्वाइन किया। उनका नाम श्री गौतम कुमार है, अभी तो लेट श्री गौतम कुमार हो गए हैं। वो कुछ दिनों पहले अराउंड 13 को रात में हॉस्टल में बर्थडे था लड़के का, तो उसमें वो उस रूम में थे और वार्डन ने वहाँ आ गए थे और वहाँ पे उस रूम में उन्हें कुछ सब्सटेंसेस मिले जो अब्यूज़ हो रहे थे। वहाँ पे एल्कोहल मिला, बट वो बच्चे उस समय कंज्यूम नहीं कर रहा था, ऐसा हमें पता चला है। वी आर नॉट श्योर, बट हाँ वो बोल रहा था बार बार कि मैंने नहीं कंज्यूम किया है। अब जब मैम ये ऐसे केसेस आते हैं, मैं 4 साल से इस हॉस्टल में हूँ, जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो हमेशा ये प्रोसीजर होता है कि पहले इंक्वायरी होती है, बच्चे की सुनी जाती है, फिर फैक्ट्स पे आते हैं, फिर एविडेंस पे आते हैं, फिर हम लोग सुनाते हैं कि भाई आप एक्सपेल्ड हो, सस्पेंडेड हो, क्या हो। तब तक के लिए बच्चा हम सस्पेंड कर देते हैं कि आप सस्पेंडेड हो। इस समय इस केस में मैम हुआ क्या, शायद मेरे हिसाब से वो फर्स्ट ईयर था, तो उसको एग्जाम्पल बनाने के लिए दूसरों के लिए, जो कि प्रथा चली आई है हमारे कॉलेज की, एग्जाम्पल बनाने के लिए उसको एक्सपेल कर दिया अराउंड 12 घंटे के अंदर। 4 घंटे पहले एक रिपोर्टिंग हुई और 4 घंटे बाद नोटिस आया, यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज प्रेमिसेस, स्पेसिफिकली मेंशनिंग अबाउट द सब्सटेंस यूज नेम्ड गांजा। What's happening is very simple. It's a mockery of the justice system. It's the mockery of the simple law education that is given in this campus. We are very clearly seeing that we have put our request forward through legal means, that is through the acts that the college is governed by, through the means of notices, through the means of legal methods, by the filing FIRs, by giving written complaints to the registrar, by giving the messages to the VC. He's not here right now. The VC has not been in contact with the college administration since the night of 15th. That has been almost 36 hours. He has not been in contact. He's outside. And the authority since then has said that since the VC is not here, we won't be suspending the professor. And while we're not suspending, we'll be making a fact-finding committee. And this fact-finding committee will be going forward with an investigation for 7 days. Ma'am, they are taking 7 days to investigate something that the warden did not even take 2 hours to investigate. The warden rushed in to the room of Gautam's friend. He rushed in, did not make a video, no videographic evidence as per the requirement of any country's law. No videographic evidence, no seizure of any material or contraband, nothing. Nothing is on record except a single notice dated 14/9/2024, which stated that the students were involved with liquor and narcotics. 6 students were there. Gautam was one of them. Gautam was a 3 to 4 week old student in this college, first year MBA. He was from Bihar, was very, very lone student. आप बता रहे हैं कि आपके भाई ने जब बड़ा कदम उठाया उससे पहले उसने आपको एक मैसेज लिखा और आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने, कॉलेज ने, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। सबसे पहले मैम ये क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि हमें पता नहीं कि उसने बड़ा कदम उठाया या कुछ किया गया, क्योंकि हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया था। अब हमें ये नहीं पता कि उसने किया या किसी और ने उसके बिहाफ पे किया, पहला नंबर। और दूसरा नंबर चीज, हमें उस व्हाट्सएप के द्वारा जब पता चला तो हम लगातार उसको कॉल करते रहे, कभी उसने कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद हमने वार्डन को कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। हमें किसी ने, ना ही कॉलेज से ना ही पुलिस प्रशासन ने इन्फॉर्म किया। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जब उनको किसी जो भी उस सिटी में रह रहा था उसको भेजे, तब हमें पता चला। तो आप कुछ कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी के लिए, क्योंकि हम आपकी आवाज़ अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करके डालेंगे, तो आप कुछ कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को या कॉलेज प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को?
जी, पहली नंबर बात, जब हम पहुंचे वहां पे देखिए अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं किया गया। इवन हमें किसी ने एक बार बात भी करने की कोशिश नहीं की, ना वहाँ के डीन ने, वार्डन, वाइस चांसलर, किसी ने हमसे मतलब एक बार फॉर्मली बात करने की कोशिश नहीं की। किसी ने हमारा कोई हेल्प नहीं किया, कोई हेल्प नहीं मिला हमें किसी के साइड से। हम अपील करना चाहते हैं कि कृपया, और सबसे बड़ी बात मैम, जब स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया उस समय भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही हमें काउंसलिंग प्रोवाइड की गई है। हमें इन्फॉर्म कर देते या फिर काउंसलिंग प्रोवाइड कर देते तो मेरा भाई बच जाता। बच्चों की मांग अब ये है कि पहला, आप कोई प्रोसीजर डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास कोई अल्कोहल का सब्सटेंस अब्यूज की केस आता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ लिखा है? कोई प्रोसीजर नहीं है, तो फिर आप ऐसे एक्सपेल कर दोगे और मनमानी करेंगे आप। आर्बिट्ररी प्रोसेस थोड़ी ना होता है मैम। दूसरा, उस समय कोई भी डॉक्टर नहीं था कॉलेज में, जो कि रेक्विजिट है एक यूनिवर्सिटी का। सर मैम, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए। अगर 1% भी चांस था उस बच्चे का बचने का तो वो वहाँ ख़त्म हो गया। अगर वो चांसेस थे भी तो डॉक्टर होता तो शायद बचता। मैं नहीं बोला कंफर्म नहीं बचता, ठीक है, मान लिया नहीं, अगर चांस थे तो वो चांस तो गया ना वहाँ पे। तीसरा मैम, हम कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं कि हम अब उस बच्चे का डिमाइस हो गया। वो बच्चा एक फैमिली की जड़ था, वो उसको सपोर्ट करता, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करता बुढ़ापे में। उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? वो कॉम्पनसेशन तो यूनिवर्सिटी देगी ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बच्चा, उसने ये कदम उठाया ड्यू टू आपके प्रोसेस, आपकी रेकलेसनेस की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी गलती है, आपने बाय द बुक सारा काम ठीक किया, आपके हिसाब से किया होगा। बट मैम, आप अगर कोई बच्चा गिर रहा है, रेकलेसली आपने काम किया ना, मतलब आपने सुनी नहीं उसकी। एक्चुअली फ्राइडे शाम को वो खुद पार्टी से आया था, फ्रेशर्स पार्टी थी MBA की, वहाँ से जो अनऑफिशियल पार्टी थी, यस अनऑफिशियल पार्टी बाहर थी पंजाबी बाग में, वहाँ से वो बच्चा आया था शाम को। तो उसने कुछ कंज्यूम किया होगा, वो अपने फ्लोर पे गया, उसी के फ्लोर पे कुछ जूनियर्स बर्थडे बना रहे थे, तो उसको बुलाया गया कि हाँ ये केक वेक खाइए कुछ। तो वो वहाँ थे, उन्होंने कुछ किया नहीं किया वो भी आपको नहीं पता है। कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन और तुरंत उसी टाइम हॉस्टल वार्डन आ गए वहाँ पर। तो वो आए और उन्होंने देखा जिन जिन बच्चों को वहाँ पाया गया उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और एक्सपेल्शन ऑर्डर निकाल दिया गया। He was told on Saturday by the warden that if you come to my room, I'm gonna take more serious action. When the seniors of Gotham from the MBA department came and asked for forgiveness or a better say, a better review of this whole thing, because the normal norm is a review committee is formed where both the wardens sit with the chief warden and the whole situation is reviewed before expulsion. The warden said that don't you know what my reputation is? अभी इधर से बाहर निकल जाओ, otherwise तुम्हारा नाम भी मैं expulsion notice में ऐड कर दूंगा बाकी 6 लड़कों के साथ. And ma'am, after that, Gotham committed suicide at 6:10 p.m. and by 7:20, it took 1 hour for an ambulance which is standing barely 100 meters away from the hostel to take him away. They did not conduct the proper forensics. Even the police is quiet on that. The FIR was registered next day in the morning. This happened 6 p.m. on 15th. They registered FIR on 16th. And the professor, the warden, Rakesh Kumar, is absconding since that time. As we saw, students are protesting and want to continue protesting till their demands are not met. They are saying that they have only 3 crucial demands: the suspension of the warden Rakesh Kumar, a student grievance, formation of a student grievance cell, and compensation for the family of the deceased. It is to be seen how long the students will be protesting or and when the administration will be listening and when the administration will accept their demands.